આજે આપણી સાથે છે એક ગુજરાતના ફિમેલ એન્ટરપ્રેન્યોર કે જેણે પોતાની એક બિઝનેસ પોતાની જાતે ઊભો કર્યો છે અને ગુજરાત અને પૂરા ઇન્ડિયામાં પોતાનું નામ કર્યું છે. તો કોણ છે અને કઈ રીતે એમણે આખો બિઝનેસ કર્યો આપણે એમની પાસેથી જ જાણીશું. હાય હિરલ દુધરેજિયા. તમારા માટે તમે જ કહો કે હિરલ દુધરેજિયા કોણ છે? Okay, Hiral Dudreja for me right now is serial entrepreneur, a spiritual person, and definitely an engineer by education. Okay. Yes. Spiritual. Yeah, so spirituality, if I tell you ને તો બહુ જ નાનપણથી મારામાં સ્પિરિચ્યુઅલ સંસ્કાર હતા which I saw so much. And spirituality is not into કે તમે મંદિરમાં જઈને હાથ જોડો. For me it is about, feeling all the energies of the nature. સો સૂરજ કેમ ઉગે છે, કેમ ડૂબે છે, આવા બધા ક્વેશ્ચન્સ મને બહુ થતા નાની હતી ને ત્યારે. તો ત્યારે તો યોર પેરેન્ટ્સ આર ગિવિંગ યુ લાઈક ધ સાયન્ટિફિક આન્સર કે ભાઈ તમારી પૃથ્વી ગોળ ફરે છે તો આ રીતે થાય, આ રીતે થાય. બટ અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ આઈ ઓલવેઝ હેડ ધોઝ ક્વેશ્ચન્સ ઇન માય માઇન્ડ કે આના ટાઈમિંગ્સ ડિસાઇડેડ કઈ રીતે છે. સો ફોર અ ચાઇલ્ડ મને એવું લાગતું કે બહુ વધારે પડતા ક્વેશ્ચન્સ હતા મારા પેરેન્ટ્સ માટે આન્સર કરવા માટે મને. અને ત્યાંથી મને એવું લાગ્યું કે જો અગર હું ઇફ આઈ ગો મોર ઇન ટુ સ્પિરિચ્યુઅલ બુક્સ, આપણી ભગવદ્ ગીતા છે અને એ બધું, તો મને કદાચ ત્યાંથી આન્સર્સ મળશે. અને દેટ વોટ આઈ સ્ટાર્ટેડ. ભગવદ્ ગીતા ડેફિનેટલી આઈ હેવ રેડ. ઘણી બધી સ્પિરિચ્યુઅલ હીલર્સ છે, ઘણા બધા જેની બુકો મેં વાંચી છે. એન્ડ डेफिनेटली आई गेन लॉट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम देम आल्सो. ओके. और इसके बाद आप इंजीनियरिंग आपने की और उसके बाद आपने अपना बिजनेस शुरू किया. तो इंजीनियरिंग से लेकर एंटरप्रेन्योर तक की जर्नी कैसे शुरू हुई? हाँ, तो इफ़ आई से कि मैंने जो पढ़ाई की डेफिनेटली घर में इफ देयर इज़ अ ब्राइट चाइल्ड एक्सपेक्टेशन इज ऑलवेज कि या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो. एंड माय फादर वाज आल्सो अ डॉक्टर. छोटे होते तो सिर्फ दो ही ऑप्शन होते कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर. फॉर मी इट वाज वेरी डिफरेंट बिकॉज माय फादर वाज अ डॉक्टर. ओके. So and still you choose to be engineer. I could not score that much to get the clearance in the medical examination, frankly speaking. Otherwise I would have been a doctor. So थोड़े से मार्क्स कम पड़ गए. So I took a next stream which was very hit stream after the medical was electronics and communication engineering. So I did that. But बचपन से आपका सपना क्या था, क्या बनना चाहते थे? I was very clear surprisingly that I wanted to be an entrepreneur. I have never done a job in my life. Before the word existing entrepreneur. Before the word existed, the entrepreneur in my mind, everybody in my home was a job person. Right? And I was always getting very fascinated by the entrepreneurs. The thing was that fascination for me was the creative minds they are. They don't have anybody to guide. They are creating ideas and those ideas are converted into, business, and business which is actually giving so many job opportunities to other people. So that was very, you can say that was very lucrative thing for me. That how can you make so many jobs for others? And that was the idea that I always wanted to be an entrepreneur. And I had that thing very clear in my mind that okay, I'll be an entrepreneur. And I've done that. क्या बनना चाहते थे, क्या बिजनेस करना था, बचपन में क्या सपना था, ऐसे क्या सोचे थे? तो कभी क्लियर नहीं था क्या बिजनेस करना है. मतलब कुछ भी करना है लेकिन ये जॉब वगैरह में नहीं पढ़ना है. जॉब नहीं करना है, मुझे जॉब्स क्रिएट करनी थी हमेशा से. Okay. I never wanted, it's not that I never wanted to do a job, but I always had a very big respect for the people who are doing job actually. My father was the job person. My grandfather was a job person. My uncles are job person. Everybody is a job person. I have a great respect for the people who are doing job. But I actually wanted to go beyond that, how to create the job. So it was never that idea in my mind that what kind of business I wanted to. But I knew that thing that okay, I can do something. And it will get clear as I'll age, as I'll complete my studies, I'll get the clarity what I want to do in my life. मतलब कि आपको क्या करना पसंद है कि ऐसे ही जब बचपन में हम कुछ भी करते हैं तो दैट ऑल डिफाइन कि हम बड़े होकर क्या करेंगे, मतलब उसका कुछ ना कुछ ऐसे ही लगता है. So I was a very artistic person. Okay. Art impressed me a lot. Which art? I was a very good painter. I am still a very good painter. So I used to paint a lot, my thoughts and everything. It was a freestyle painting. I never thought कि मुझे कुछ figures बनानी है, everything. Anything which used to come into my mind, I used to draw. I used to draw my emotions on the board and everything. And I used to write poetries. Okay. So that thing came to me from my grandfather.
he was a professor in the college and he was a very good poet. So that thing came into my DNA to write poetry. So I used to write a lot. Okay. You have any remember? I don't remember any specific poetry, but Because I read the- poetry, so I am interested in that. see, it's a very funny thing. For the first poem I wrote was on my maid. She used Okay. to come to our house daily, and she used to take care. She used to play with me when I was a very young girl, and she was also a very young girl at that time, little bit elder than me, and we used to play a lot. So I got, so much good connection with her, and I wrote a poetry on her, that how she comes, how she looks, how she gives her warmth to me, and everything I wrote in the poetry. And I don't remember the words right now, but yes, I still remember that I wrote a poem on her. It was And- your first poetry. Yeah, that on was my marriage. first poem, I think I wrote. कोई जॉब वगैरह कुछ किया है आपने? नहीं, मैंने कभी जॉब नहीं की है लाइफ में. कोई भी नहीं. नहीं, मैंने बिल्कुल एक भी जॉब नहीं की है लाइफ में. So after engineering, हाँ, ये कैसे शुरू हुआ? after engineering, for some time I used to do visa consultation. So जो education abroad का business है, that I had. Then due to some circumstances I had to give up on that business, and then I came to Ahmedabad and I started the mechanical car parking business. I was the founder. I met my company partner, Mr. Kartik Kothari, and we started the firm, which is Newton Automation Private Limited. okay. Yes. Hiral Dudreja, one success lady of Gujarat, but what about past? Is it something difficult? See, let me tell you, when you choose an entrepreneurship, the road is never smooth for you. What about your life journey? My Life journey after engineering and still. and still life journey. What I can say, I've passed through a divorce. I think that was the deep When? down. I got married when I was 22, Okay. and then I got divorced when I was 24. In 2 years, I just In got 2 divorced. years, okay. Yes. So I think the life took a very big turn personally for me since that time. Because it is definitely emotionally for a 22, 23-year-old girl to go through that kind of setback in her life is a difficult story. But then my goals were very clear that I wanted to be an entrepreneur. My whole focus was on my career, and till today it is on my career. ओके. अभी की बात करें तो अभी मैरिज की एज सीधा 27, 28 के ऊपर चली गई, और पहले की क्या होता था कि आपके पहले की बात करें तो तब 16-17 साल ऐसे ही हो जाता था कि 16-17 साल में मैरिज, उसके बाद 20, 22, 24. व्हाट डू यू फील, कौन सी एज आपके लिए मुताबिक ऐसे परफेक्ट लग रही है कि तब शादी करे, देन इट्स बी फाइन? See, when it comes to the personal relationship and the marriages, I feel there has to be a very perfect age when you can actually surrender to your partner, and your partner can surrender to you. So that age I think for everybody is between 25 to 30, where you are making your career, you are just little bit getting established into your career, you are understanding the other person, you actually know what you want also from the life. And that time to make a connection, to make a relationship is very easy. After 30, and if you grow older and older, then your ego do not allow you to surrender to your partner. So I think before 30, 25 to 30 is a very good age to get married. Not But before after that, 30, not but beyond before 30 you can definitely. that. Before 25, it's an immature decision. After 30, I feel it becomes difficult. It's not that you cannot marry. Definitely, if you want, if you get a good companion, you So can your definitely marriage get married. decision is for your or parents are in marriage? I had a love marriage. Okay. So my ex-husband was, yes, definitely my college friend. And If you don't mind, how long was your relationship? yes, so Before I marriage? was friend with my ex-husband when I was 19 years old in Okay. college, and then at 22, when I completed my college, we decided to get married because we wanted to start a business again. This visa consultancy business was with him, so we both thought of starting that business together, and we thought it's better that we get the social approval, so we should get married. So there was no specific purpose to get married at that We time. seen in many cases like जब हम रिलेशनशिप में लोग होते हैं तब एकदम ऐसा परफेक्ट सब कुछ चलता है, लेकिन आफ्टर दैट वो 5-6 साल 7 साल की रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट चलती है, और उसके बाद मैरिज होता है तो 1-2 साल में मतलब
क्या लोगों को क्या ऐसा नहीं पसंद आता, या फिर उनका डिसीजन ऐसा क्या गलत सो होता है? दैट इज व्हाट आई से ना, कि मैंने जितने भी शादियां देखी, वॉट एवर, बिकॉज द डिवोर्स रेट्स आर गोइंग वेरी हाई राइट नाउ इन द सोसाइटी. सो व्हाट आई फील इज, यू नो, बोथ द पीपल व्हेन दे आर टुगेदर एट वन पॉइंट, दे आर एट वन पॉइंट एंड एट अ वन ग्रोथ. जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती है ना, वन पर्सन इज ग्रोइंग, द अदर पर्सन इज ग्रोइंग. दोनों ग्रो करना शुरू करते हैं, मेंटली ग्रो करते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करते हैं, एवरीथिंग इज देयर. एक का ग्रोथ दूसरे से अगर कम रह जाता है, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. बोथ नीड्स टू गो साइमल्टेनियसली. मेंटली ग्रो करना बहुत ज़रूरी है मैरिज में. और अगर एक ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो जो ग्रो कर रहा है वो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मेंटली ग्रो करो, दूसरे पार्टनर को भी. जहाँ पे एक मेंटल ग्रोथ रुक जाता है एक पार्टनर का ना, और एक पार्टनर ग्रो कर गया है, then it becomes very difficult to survive a relationship, I feel so. And that is the main reason right now that people are getting so much divorced. ओके, ये पूरे फेज में पेरेंट्स का क्या रोल था? पेरेंट्स का रोल, आई मस्ट से, हमारे पहले की जो जनरेशन थी ना, वहाँ पे पेरेंट्स का रोल था. बट द जनरेशन विच वी रिप्रेजेंट एज मिलेनियल्स, सो from our generation that role is very limited, because we are very free generation, we are very self-made generation. And after that, every generation is becoming more and more independent. They are taking every decision very emotionally. So parents का इतना बड़ा role है नहीं अभी. What I feel is they are all personal decisions. To do a marriage is also everybody's personal decision right now. To get divorced is also a very personal decision. But after breakout, how much emotionally parents are involved in that? Parents, I'm blessed with very supportive parents actually, and I think everybody in my generation, in the newer generation, is blessed with very intellectual parents. So every time when I pass through that down phase, my parents were always there with me. They say, you make a decision, we will not tell you what is right, what is wrong, and which is a very, very beautiful thing for parents to do. They say, you are an adult girl, you're making your own money, you have your own career, you make your own decision. Whatever the decision you make, we are with you. And I think majority of the parents right now are playing this role, who are educated enough, who are intellectual enough. So they are always supportive, definitely. Okay. तो आप उस वक्त, उससे पहले आप वीज़ा के कंसल्टेंसी वगैरह बिजनेस में थे, और उसके बाद आपने ये सब हुआ, ये सब फेज निकला, उसके बाद आपकी जर्नी कैसे हुई, फिर आपने नया बिजनेस कैसे शुरू किया? See, definitely the visa consultation business was very successful at that time when I did it. And for a 22-year-old woman to get successful, materialistically also successful business जो मैंने किया था, वो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. And that gave me like lots of confidence. बहुत ज़्यादा confidence था कि यार business करना आता है मुझे. I got that approval from myself first. कि भाई मुझे बिजनेस करना के लिए आता सबसे है. पहले खुद का अप्रूवल चाहिए कि मैं कर लूंगा. मैं अगर मैं जॉब नहीं करूंगा तो भी मैं भूखा नहीं मरूंगा, मैं फोड़ लूंगा. Exactly. And once you have done one business, you get that confidence that हाँ. you know you can sell anything. You know, in the business का the very basic fundamental thing is you have to sell. And you know you can sell anything, then you're very confident you can do any kind of business. So that after that first business, I definitely knew I can do any business. And my age was a very supportive factor. That 24, 25 was a very also young age to start a business, because you have very free mind to think of something. And I was an engineer. So at that time, mechanical car parking field was growing abroad. So जो अब्रॉड में उसका ग्रोथ था, and I knew that it is always going to, because parking is going to be a very big issue over here in India also. उस वक्त नहीं था, 2012-13 की अगर मैं बात करूँ तो इतना बड़ा इशू इंडिया के लिए नहीं था, but I knew it is going to come like, you know, the very big issue into India. So मुझे लगा this is a very this sounds very interesting thing. So I went to China actually to study the mechanical car parking. Okay. South Korea and China, I went to study that how these things are getting. Sorry. Which year? 2012. Okay. Yeah, 2012 I went to China and South Korea to study the products and everything. And then definitely I got my business partner, who are a family friend, Mr. Kartik Kothari. He joined me and he said, okay, let's start this business. And this is how we started this business, mechanical car parking. And we introduced that mechanical car parking business to India. There were very few companies who were doing that business at that time. But definitely we are, as a Newton Automation, one of the pioneer people to bring the mechanical car parking into India.
इज दैट अ रोबोट पार्किंग एंड एवरीथिंग? ये आपका खुद का आइडिया था या फिर किसी ने आपको सजेस्ट किया था कि ऐसा हम कर सकते हैं वगैरह? सजेशन तो नहीं था, मैंने खुद ही स्टडी किया था। जैसे मैंने बोला, इंटरनेशनल लेवल पे मैंने ये बिजनेस को स्टडी किया था। सो मैकेनिकल एंड रोबोटिक्स कार पार्किंग जो है, विच इज़ एक्चुअली टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन। सो एक टेक्नोलॉजी है, उसके बाद एक इवोल्यूटेड टेक्नोलॉजी आएगी, उसके बाद एक और इवोल्यूटेड टेक्नोलॉजी आएगी। सो दिस इज हाउ दिस बिजनेस इज ग्रोइंग राइट नाउ। क्या होता है इसमें? सी, एज द कार पार्किंग इशू is prevailing into India. So आपके पास रोड पे and on the ground the spaces are very less. So आपके पास जब space on ground is very less, you have to go vertical. So mechanical car parking is actually stacking up the cars vertically. Okay. So एक के ऊपर एक कार stack करना, that is a mechanical car parking. And पूरे गुजरात में आप पहले थे जिन्होंने ये सिस्टम वगैरह अपने यहाँ पर लाया? Many companies were there, but वो companies मुंबई की, महाराष्ट्र की थी, साउथ इंडिया की थी। गुजरात की वी आर द फर्स्ट कंपनी। ओके, यस। और गुजरात में जब ये आप लाए तो इसकी शुरुआत कहाँ से की, कैसे की थी? मतलब आपके पास आइडिया था, आपके पास सारा मैन्युफैक्चरिंग था, आपने बोला कि मुझे ऐसे करना है, लेकिन वो पहला क्लाइंट वगैरह कैसे आया और कैसे आपने वो शुरुआत की? हाँ, तो जब वी स्टार्टेड द बिजनेस ना, तब उसकी डिमांड बहुत कम थी 2012-13 में। क्योंकि जब भी हमको नया कॉन्सेप्ट लाते हैं ना, तो लोगों को समझाना काफी कठिन होता है कि इससे आप करो, इससे हम फायदा होगा, वो कैसे आपने समझा? मैं आपको बोलती हूँ, आई हैव बीन टचवुड वेरी लकी इनटू दैट मैटर। 12-13 में हमने मैकेनिकल कार पार्किंग इंट्रोड्यूस किया, तब डेफिनेटली डिमांड कम थी, प्राइस ज्यादा थी, बिकॉज डिमांड कम होती है तो प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा होती है। सो बिल्डर्स वेर हेजिटेंट टू यूज दिस प्रोडक्ट, कि उनको लगता था कि यार ये कैसे स्टैक्ड अप पार्किंग है, ये कैसे चलेगा, पीपल विल नॉट बाय माय प्रॉपर्टी इफ आई ऑफर देम स्टैक्ड अप पार्किंग। बट एट दैट टाइम अपना गुजरात का अथॉरिटी है रेरा करके, दे डिसाइड द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लॉस कि क्या होने चाहिए, एंड दे इंट्रोड्यूस्ड वन लॉ कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर FSI हैज टू बी कंज्यूम्ड इनटू पार्किंग। अब ये चीज हुई, देन ऑन द लैंड बिल्डर्स के पास वो जगह नहीं मिल रही थी ये लॉ को कंप्लीट करने की। दे हैड टू गो फॉर द मैकेनिकल कार पार्किंग, सो इट became compulsion for them to go for the mechanical car parking. So right now, to get the building usage permission also, they need to show specific number of car parkings. So for that they have to go for, तो वो compulsion बन गया mechanical car parking लेना, खरीदना and to offer that space. Okay, तो अभी कितनी जगहों पर आपका ये चल रहा है? We have more than 25,000 installations. 25,000 installation into Gujarat only. We are working into Gujarat only, and we have this Rajkot, Surat, Baroda, Ahmedabad, Gandhinagar मिला के we have more than 25,000 installations. Just one thing कि आपका ये पहले आपने वीजा कंसल्टेंसी, you are very good in that. फिर आपने ये पार्किंग का शुरू किया, ये भी आपका इतना अच्छा चल रहा है, तो उसके बाद आपने कंसल्टेंसी बिजनेस में भी क्यों ऐसे जंप किया? हाँ, सो सी, एज मैंने मैकेनिकल कार पार्किंग हमने जैसे शुरू किया ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा नई थी आर्किटेक्ट्स के लिए, प्लानर्स के लिए। So I have been always a fundamental team of the planning of a building, because mechanical car parking firm को represent कर रही थी मैं technically, तो technical to provide that kind of technical knowledge was very important in this industry, क्योंकि ये चीज़ ही नहीं है, तो आपको उसकी हाइट क्या रखनी है, उसके विड्थ क्या रखनी है, उसके डायमेंशंस क्या रखने, टेक्निकली ये चीज़ कैसे वर्क करेगी, सो वो सारी चीज़ें वेर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम दैट थिंग आई स्टार्टेड कंसल्टिंग पीपल। सो वो मैं पहले फ्री में करती थी फॉर द न्यूटन, बट देन पीपल आस्क्ड मी कि हमको इसमें और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, एंड यू आर फ्रॉम दैट फील्ड, सो यू नो एवरीथिंग अबाउट पार्किंग, बिकॉज मुझे 24/7 सिर्फ पार्किंग करना है, एंड दैट इज़ हाउ इन 2021 आई प्रोफेशनली स्टार्टेड द कंपनी टू कंसल्ट द पार्किंग। ओके, यस। एंड इसका ये बिजनेस का आगे कैसे ग्रोथ हुआ कंसल्टेंसी में? कंसल्टेंसी में सी, I don't know before me any other consultant were working into parking into whole India or not. Okay. And still not, I have not come across any parking consultant who is working into only into parking. So you are only one. I feel I am the only one right now in this industry who is consulting the parking. So वहाँ पे I started getting acceptance a lot. बिकॉज आप जब पिक पार्किंग कंसल्टेंसी करते हो, सो बिल्डर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक दे कैन हैव द 4 लेवल डाउन बेसमेंट, अभी तो पोडियम आ गया है, तो 2 लेवल अप पोडियम आप बना सकते हो, मैकेनिकल पार्किंग में जा सकते हो। सो आपको वो जो नंबर, स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्किंग जो आपको मैच करना है, उसके लिए यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। इन दिस ऑल मल्टीपल ऑप्शंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कैपेक्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
उसके बाद एक सेकंड चीज आती है ओपेक्स, विच इज ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट. सो केपेक्स और ओपेक्स को मिला के आपको क्या चीज पार्किंग में प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द बिल्डर, कि उस हिसाब से देन दे विल मेक अ प्रोजेक्ट. जैसे मैं आपको बात करूं कि अगर इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ राजकोट एरिया ना, सो देयर आर वेरी हार्ड रॉक्स. सो हार्ड रॉक की वजह से उनका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट होता है ना बेसमेंट बनाने का, वो अहमदाबाद के कंपैरिजन में डबल हो जाता है. सो कैपेक्स बढ़ गया आपका, ठीक है. उसके बाद अगर उसके हिसाब से आप अगर वो ऑन ग्राउंड मैकेनिकल कार पार्किंग, स्टैकअप कार पार्किंग जाते हैं, तो उसका ऑपरेशन कॉस्ट होता है, राइट. तो ऑपरेशन कॉस्ट अगर डाउन है उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट से, तो दे विल डेफिनेटली गो फॉर द मैकेनिकल कार पार्किंग. सो ये सारे डिसीजंस आई टेक एज अ कंसल्टेंट कि उनको किस में क्या फायदा हो रहा है. एंड अगेन इफ आई टेक सूरत का, अगर मैं इफ आई टेक एन एग्जांपल, तो सूरत हैज अ वेरी वाटरी बेड. सो वो लोग 2 बेसमेंट में जाते पानी निकल आता है. So that is सूरत, they cannot- नवसारी, वॉल, Yes. दक्षिण गुजरात इज दैट. सो वो 4 बेसमेंट तक जा ही नहीं सकते. अगर 4 बेसमेंट जा नहीं रहे तो आप कैसे पार्किंग का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करोगे, है ना. सो वहाँ पे पार्किंग कंसल्टेंट की जरूरत पड़ी आपको. सो दिस इज हाउ आई गॉट द एक्सेप्टेड इन द मार्केट एज अ Okay. पार्किंग कंसल्टेंट. उसके बाद आपने कंसल्टेंसी काफी की है. यू नो गुजराती पीपल, यू नो गुजराती बिजनेसमैन. गुजराती पीपल आर वेरी बिजनेस माइंडेड, बट हाउ मच एक्सपेरिमेंटल. ये लोग कुछ नई चीज ट्राई करने में कितना ये लोग See, I say, being a Gujarati also, and I have seen I have met so many entrepreneurs throughout the world. I must say, Gujarati people are the most creative and daring people in the world as far as the business is concerned. They are very चुपचाप रहने वाले लोग, है ना. As far as the show off is concerned, they are not into it. But in their mind, they are calculating everything every time. Very calculative people, right? But very creative people, I must say, Gujaratis. You know, बोलते हैं ना कि गुजराती के खून में धंधा होता है, right? So I have seen, anywhere I have gone, I have seen Gujaratis only doing the businesses and very creative people. कोई भी बिजनेस हमें जब शुरू करना है तो उसके लिए 2 चीज सबसे बेसिक है. पहले तो कोई भी नए बिजनेस का आइडिया आना चाहिए, और वो आइडिया तो आ जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है, लेकिन उसके लिए फंड भी चाहिए. तो कौन सा आइडिया उसके लिए परफेक्ट है, वो आइडिया और उसके लिए फंड, ये दोनों चीजों का इंतजाम कैसे किया जाता है? सी बिजनेस अगर आप जब भी कर रहे हो ना, तो आइडिया एक ऐसा होना चाहिए जो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. वेरी बेसिक. हाँ. एनी न्यूबी एंटरप्रेन्योर यू टेक, दे विल टेल यू कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होना चाहिए, राइट. इधर वो आइडिया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या तो एड ऑन कर रहा है, इन लाइफ की वैल्यू में कुछ एड ऑन कर रहा है. सो ये 2 तरीके के आइडियाज आर एक्चुअली द गुड आइडियाज, आई मस्ट से. द अदर थिंग, आपको फंडिंग, मार्केट में इतने सारे फंडिंग्स अवेलेबल है. इफ यू आर वेरी क्लियर दैट व्हाट योर बिजनेस इज ऑल अबाउट, आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वाला एंटरप्रेनर है ना, तो फंडिंग तो कोई भी दे देगा आपको. इट इज़ वेरी ईजी टू गेट फंडिंग राइट नाउ. जिस तरीके से अभी स्टार्टअप को बूस्ट मिल रहा है, हमारी गवर्नमेंट जैसे बूस्ट कर रही है स्टार्टअप्स को, फंडिंग मिलना इज़ वेरी ईजी. बट द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर बिजनेस प्लान. एनी यंग मैन इफ ही वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कैसे कर सकता है वो? सी, आप आइडिया लेके आओ. फॉर टू एनी यंग एंटरप्रेनर माई एडवाइस इज, आप पहले तो प्रॉब्लम पे काम करो, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक आइडिया लाओ. उसके बाद आप उसको बिजनेस को, आइडिया को डिज़ाइन करो कि इन नेक्स्ट 10 years हाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग. सी, इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द बिजनेस इज कंसर्न. यू नो, आइडिया 100 लोग लेके आएंगे, उसमें से एक ही इंसान उसको इम्प्लीमेंट करेगा. सो आपके पास 10 साल का इम्प्लीमेंटेशन प्लान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सिर्फ आइडिया को लेके आप क्या करोगे? देयर आर मेनी आइडियाज इन द मार्केट. सो आपके पास वो प्लान आप बनाओ, 10 साल का इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाओ. स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन दैट आइडिया फर्स्ट. उसका डेटा गैदर करो. आप वर्ल्ड वाइड डेटा क्या है, जो भी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला रहे हो या जो भी आप बिजनेस मॉडल बना रहे हो. And then go for the funding. You will definitely get the funding for the startup, and you can start your business. Okay, next, if I want to start a business, after 12 years of your experience, आप क्या कहना चाहते हो कि business with partnership is great और अकेले is best? See, I have a very clear vision about that, कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते. Okay. You need to have very good partners with you
who have the aligned vision, वो बहुत important है कि आपका दोनों का विजन बहुत अलाइंड होना चाहिए कि आप एक चीज़ सोच रहे हो कि मैं 10 साल में बिजनेस को यहाँ पहुँचाऊँगी, आपके पार्टनर को भी पता होना चाहिए, आपका पार्टनर का विजन भी वो अलाइंड होना चाहिए। एक अकेला बिजनेसमैन आई डोंट थिंक सो, उसको उसकी टीम चाहिए, उसके पार्टनर्स चाहिए। टीम चाहिए Definitely. डेफिनेटली, बट इन ग्रोथ एंड ऑल completely 50-50 partnership is important, or is own idea is important? See, 50-50 partnership या 90-10 partnership, everything on paper can be decided later. The only thing is that आपको अपने आइडिया को सपोर्ट करने वाले और एंटरप्रेन्योर्स जुड़ने चाहिए आपके साथ, राइट? क्योंकि आप अकेले कोई आइडिया को एक बहुत बड़ा आइडिया नहीं बना सकते, उसको एक बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो डेफिनेटली आई टेल टू यंग पीपल दैट इफ यू आर अलोन एंड इफ यू हैव गुड आइडिया, स्टार्ट फ्लोटिंग दैट आइडिया टू द अदर पीपल ऑल्सो. So whoever is interested in that idea will join you automatically. They will also see the growth with you, and then you can make really good company, Yeah. big company. Yes, go for the partnership. As a Definitely go business for the consultant, partnership. Yeah. what do you suggest? What is the clear success funda of business? See, there is no clear success funda for the business. Success की guarantee आप I even see is success की बात आती है ना, मेरे mind में clarity नहीं है success की क्या है. अगर आप पैसा कमाना चाहते हो उसको सक्सेस बोल रहे हो, या फिर आपने कोई एक बहुत अच्छा आपके लिए बिजनेस सक्सेस क्या बनाया. है? सी फॉर मी मेकिंग अ गुड बिजनेस, एंड दैट इज very Making a much good business, that also means making a good money. not only the money but making a good business which is definitely giving so much of employment again. Okay. मेरे लिए वो बहुत, क्योंकि मुझे लगा है जैसे बचपन से मैं देखती आई हूँ, मुझे लग रहा है कि इंडिया के लिए एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, राइट? बिकॉज द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई नाउ, वी आर द नंबर 1 इनटू पॉपुलेशन इनटू द वर्ल्ड, राइट? तो यहाँ पे जितना AI जॉब्स को ओवरटेक कर रहा है, राइट? सो उस हिसाब से अब बहुत जो भी नीचे लेवल के लोग हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए जॉब का बहुत बड़ा इशू होने वाला है इंडिया के. सो अगर एक इंडियन एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस को देखता है तो उसको हमेशा वही देखना चाहिए कि वो कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पा रहा है. सो एक सक्सेसफुल बिजनेस मेरे लिए वो है कि नॉट विच इज ड्रिवन एंड यू नो मेकिंग सो मच ऑफ मनी थ्रू AI, बट हाउ मच एम्प्लॉयमेंट इट इज क्रिएटिंग इनटू द इंडिया. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर. ओके, एम्प्लॉयमेंट की बात आई है तो अनएम्प्लॉयमेंट में आपका क्या है, ऐसा आपका थॉट है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे रियली है इंडिया में? क्योंकि अगर किसी को जॉब करनी है, अगर वो करना चाहते हैं तो उसको जॉब मिल ही नहीं रही है, ऐसा एक्चुअली ऐसा है? I say there are two parts in unemployment, right? As far as the new generation is concerned, कि जो अभी नई जनरेशन आ रही है, the Gen Zs if you say specifically, which is a very debatable topic that Gen Z at work. So वो एक चीज़ में दो पार्ट है अनएम्प्लॉयमेंट के. The first is conscious unemployment, that somebody doesn't want to work. They just want to live freely and they don't want to make money. They just want to enjoy their life. And just because वो बोल नहीं पा रहे कि हमको enjoy करना है life, तो वो अपने आप को unemployed दिखा रहे हैं. एक ऐसा बहुत बड़ा you know, I have the group of people like that, Gen Zs में. और दूसरा पार्ट ये है रियल में, जहाँ पे हम स्मॉल लेवल स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की बात करें या अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ की बात करें, वहाँ पे रियल में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का इश्यू है. आप देखो आज AI ने कितने अकाउंटेंट्स की जॉब ले लिया, जहाँ पे मुझे पहले 10 अकाउंटेंट्स चाहिए होते थे अगर एक कंपनी के लिए, आज एक ही अकाउंटेंट इज इनफ. तो बाकी के 9 अकाउंटेंट क्या कर रहे हैं? इट्स एन अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? सो पहले आपको पता होता था टाइपिस्ट होते थे, राइट? नाउ नोबडी नीड्स अ टाइपिस्ट. सो जो टाइपिस्ट थे, नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव टू आइदर अपग्रेड देयर स्किल और फाइंड अनदर जॉब. डेफिनेटली So AI के आने ने से तो बहुत सारी जॉब्स ले ली है, और इंडिया के लिए बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन बहुत ही बड़ा इशू है टू दिस काइंड ऑफ पीपल हु रियली वांट टू वर्क, बट उनका जॉब रिप्लेस हो गया AI से, तो वो अनएम्प्लॉयड ही है. फिर अनदर बिजनेस जहाँ पर हम ये बैठे हैं, ये पूरा एवनिस्ट्रीज, Yes. इसके बारे में थोड़ा बताइए. So the two businesses which I'm doing right now is B2B, right? Business to business businesses है, जहाँ पे हम बिल्डर्स और आर्किटेक्ट्स को सर्व करते हैं. सो अगेन जो इशू मैंने आपको बताया बचपन से मेरे माइंड में था, वो एम्प्लॉयमेंट का इशू था. तो मेरे दोनों B2B बिजनेसेस में आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ AI.
तो वहाँ पे इतने बड़ा स्कोप नहीं है कि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाऊँ. सो आई थॉट आई एम एट दैट स्टेज इन माई लाइफ जहाँ पे आई नीड टू नाउ रियली थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. एंड आई रिसर्च्ड अ लॉट अबाउट द थिंग्स कि कौन सा एक बिजनेस होगा जहाँ पे उसको AI चाह के भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा. That is the मेन क्वेश्चन कि अगर हम कोई भी बिजनेस शुरू करें AI वहां पर नहीं आना AI चाहिए. AI आना चाहिए बट AI का फील्ड लिमिटेड होना चाहिए. आई फील सो कि आप हर एक चीज AI से नहीं कर सकते. सो दिस बिजनेस इबनी स्टेज इज एन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस. अब हॉस्पिटैलिटी में द मेन वैल्यूड थिंग इज अ ह्यूमन टच एंड ह्यूमन इंटरेक्शन. अब उसको AI कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता. Right, so that is my main purpose, that definitely I want to grow this business to such a level where I can create hundreds of jobs tomorrow. Okay. Yes. किसी को आपके साथ एज ए बिजनेस इबोनी स्टे में कनेक्ट होना है तो वो कैसे हो सकता है? See, we are online present everywhere, right? We have our email IDs, we have our phone numbers of our team also there on the online. They can definitely get connected to us through email or the phone numbers which are given on the website. Okay, and what about the opportunity for them? We will definitely see the opportunities for the Ibni Stays क्योंकि right now Ibni Stays का बिजनेस जो है हम विला होम रेंटल्स में काम करें. जो लोगों के सेकंड होम होते हैं हम उनको वैकेशन होम में कन्वर्ट करके वी मेक इट सेलेबल, राइट. सो वहाँ पे हम एवरी मंथ, आई मस्ट टेल यू, वी आर एडिंग ऑन 20 होम्स इनटू इंडिया एवरी मंथ. सो जहाँ पे हम इस स्पीड से काम कर रहे हैं तो उतनी ही एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं. सो डेफिनेटली वी हैव लॉट्स ऑफ स्कोप फॉर पीपल हु वांट्स टू जॉइन अस. आपने B2B भी किया है पार्किंग वगैरह में, फिर अभी आप B2C भी कर रहे हो. अगर किसी को स्टार्ट करना है तो कैसे आइडिया लगाए कि कौन सा उसके लिए बेस्ट है? देखिए, आप अगर B2B की बात कर रहे हो ना, तो B2B बिजनेस में यू नीड टू सेल द थिंग जहाँ पे आप आपका बायर जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट. कि भाई पार्किंग का इश्यू है तो मैं पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ और वो आगे उसको बेच रहा है, राइट. सो उसके लिए भी वो सेलेबल सब्जेक्ट हो गया. तो वहाँ पे मटीरियलिज्म काउंटिंग इज वेरी मच कि आप उसको कितना फ़ायदा मटीरियलिस्टिकली करा रहे हो कि वो अपने क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस या मटीरियल दे पाए. सो दैट इज़ B2B. सो यू नीड टू सी इफ़ यू वांट टू गो इनटू दैट सेगमेंट ऑल्सो. एज फार एज B2C इज कंसर्न, यहाँ पे आप कंज्यूमर्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हो. सो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करना इज लाइक लिटिल बिट डिफिकल्ट पार्ट देन B2B, क्योंकि B2B में आपको पता है कि उसको क्या चाहिए, आप सर्व कर रहे हो. B2C में आइडिया बहुत टाइम के बाद लगता है कि एक्चुअली व्हाट योर कस्टमर नीड्स. सो उसके लिए आपके पास बहुत पेशेंस होना चाहिए. आपके पास 1-2 साल है, इन्वेस्टमेंट मनी है, पेशेंस है आपके पास 1-2 साल का, तो आप B2C में जाइए. आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, बहुत जल्दी आपको लगता है कि मुझे मेरा बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो B2B चाहिए. क्विक रिजल्ट तो B2C में भी नहीं मिलेगा ना, उसमें भी कोई भी बिजनेस शुरू करें B2B में कंपेयर टू B2C बहुत क्विक रिजल्ट मिलता है ना. क्योंकि B2B में अगर आप कोई अच्छा, आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास अच्छा थॉट है और सामने वाला भी एंटरप्रेन्योर है, तो बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस मिलता है आपको B2B में. तो आप समझो कि कोई भी B2B बिजनेस को एस्टेब्लिश होने के लिए 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगता है. एस्टेब्लिश होने के लिए, आई एम सेइंग, नॉट मेकिंग मनी और एनीथिंग, बट यस, एस्टेब्लिशमेंट 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगता. एज फार एज B2C इज कंसर्न, कम से कम 2 साल निकल जाता है उसको एस्टेब्लिश होने बिजनेस को. अपार्ट और बिजनेस एंड ऑल, आपका पर्सनल एक काइंड मोटिव ये भी है कि आपको स्मॉल स्केल जितने भी लोग हैं उनको आपको एम्प्लॉयमेंट देना है. कैसे कर रहे हो आप ये? इबनी स्टेज एज आई से कि हम जब भी एक विला को वैकेशन होम रेंटल में कन्वर्ट करते हैं, सो एक विला केयरटेकर्स की जॉब क्रिएट कर रहा है, एक विला कुक की जॉब क्रिएट कर रहा है, एक विला साफ सफाई करने वाले की जॉब क्रिएट कर रहा है, जो इतनी जॉब नहीं थी पहले. सो वो हर एक विला अपने साथ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है. सो दिस इज हाउ वी आर मल्टीप्लाइंग. वी डिस्कस अबाउट AI. कोई भी बिजनेस शुरू करे तब पहले अब एक क्वेश्चन ये भी बन गया है कि AI इसमें घुस सकता है कि नहीं. ये कैसे ध्यान रखें और कैसे इसका रिसर्च कर सकते हैं कोई भी? हाँ, सो आप अगेन एज आई सेड कि इबनी स्टेज की अगर हम बात लेते हैं, विच इज़ श्योर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, राइट. तो हॉस्पिटैलिटी में ह्यूमन टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. AI उसमें आएगा, बट AI आएगा एक लिमिटेड पार्ट तक, उसकी एक हद रहेगी कि आपको ह्यूमन टच तो नहीं दे पाएगा. हाँ, ह्यूमन टच वो नहीं दे पाएगा. सो अगर बुकिंग है, अगर आपको एक इतने सारे इंडिया वाइड विला मैनेज करने, तो वो AI से ही होगा, वो ह्यूमन से नहीं पॉसिबल है. सो वहाँ पे वो AI आएगा
और AI बहुत अच्छे से आपको हेल्प भी करेगा टू गवर्न ऑल दिस विलास, ठीक है। बट अगर आप विला पे जाके द मेन प्रोडक्ट विच इज़ द हॉस्पिटैलिटी विच यू वांट टू कंज्यूम और विच यू वांट टू हैव, वहाँ पे मेरे केयर टेकर्स ही आएंगे आपको वो सर्व करने के लिए। दिस इज़ हाउ हम इब्नी स्टेज की क्या वैल्यू उनको केयर टेकर्स को सिखा रहे हैं, क्या वैल्यू हम उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी की, इंडियन हॉस्पिटैलिटी। दैट इज़ ओनली गोइंग टू डेफिनेटली क्रिएट द डिफरेंस फॉर अस। We talk about employment and job and all. What do you think, अहमदाबाद में रहने के लिए बेसिक सैलरी कितनी है? अहमदाबाद अभी काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है, आई फील सो, बट फिर भी मुझे लगता है कि देर आर टू पीपल, दो लोगों का अगर आपका फैमिली है अहमदाबाद के अंदर, so 35,000 to 40,000 इज गुड इनफ मनी फॉर यू टू सर्वाइव टू अहमदाबाद। ओके, आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल हुआ, फिर आपने इतने बिजनेस किए, इंटरनेशनल लोगों के साथ इतना इंटरेक्शन किया, उसके बाद आप जब अपने पास्ट को देखते हो तो कितना प्राउड फील करते हो? आई फील वेरी प्राउड, सच में बताऊँ तो सीइंग माई डेयरिंग कैपेसिटी, और जो एक निडरता होती है ना, मैं सिर्फ अपनी निडरता पे बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट रियली आई वांट टू टेल यू टू दिस यूथ ऑल्सो। हम बहुत छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं, यू सी लॉट्स ऑफ सुसाइड केसेस, यू सी लॉट्स ऑफ डिप्रेशन। अब ये चीज़ कहाँ से आ रही है? डर की वजह से आ रही है। एक चीज़ से डर लग रहा है, दूसरी चीज़ से डर लग रहा है, तीसरी चीज़ से डर लग रहा है कि यहाँ लाइफ ख़त्म हो जाएगी, अब ये नहीं चला तो ये नहीं होगा। वाई? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़िंदगी में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। द लाइफ इज़ सो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक चीज़ नहीं चली, देयर आर मेनी थिंग्स विच कैन वर्क फॉर यू। व्हाई आर यू गेटिंग स्कैर्ड? यू नो, सो व्हेन आई सी माई सेल्फ, यू नो, 15 years बैक, मैं कभी नहीं डरी हूँ चीज़ों से। आपको किस चीज़ से डर लगता है? मुझे एक्चुअली किसी चीज़ से डर नहीं लगता। कोई तो चीज़ होगी ना, ऐसे ही मतलब कोई चीज़ तो ऐसी होगी जो हाँ, इंसान को अंदर से डर, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। मुझे स्टैग्नेंसी से बहुत डर लगता है, एक जगह रुक जाने से बहुत डर लगता है। अच्छा, यू नो, इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग क्रिएटिव, राइट, या मैं किसी भी चीज़ की वजह से अगर रुक जाती हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस रुक जाती है, मैं अपने आप को रोक लेती हूँ कहीं पे कि यार अब यहाँ से मुझे आगे नहीं बढ़ना है ना, तो उससे मुझे बहुत डर लगता है। आई डोंट वांट दैट थिंग इन माय लाइफ एवर। इफ आई बिकम टुमारो 60 years old or 80 years old, आई वांट टू डेफिनेटली, you know, move on, do new and new things in life. if you want to say anything about your business that we miss. Businesses, I think we have covered everything about my businesses. What more to say? कैसा लगा बात करके, कैसा है? I feel very good. I was little bit nervous. मतलब आप इतने बड़े इतने बिजनेसमैन को पिच कर रहे हो। See, यहाँ पे I don't know really what your audience or what my audience is going to get out of my thought processes, but you know, I feel when a person who is on this stretcher na has a very good influential capacities, और कहीं I was like little bit hesitant कि वहाँ पे कहीं पे कोई गलत influence नहीं जाना चाहिए. It becomes my responsibility. Whatever I say or whatever I have been telling to you, there has to be nothing which can, you know, influence anybody negatively. There has to be a very positive influence. So I was nervous because of this. मतलब इन दी एंड अगर हमें कुछ बिजनेस करना है तो कूद पड़ो, कूद पड़ो, डरो नहीं, डरना नहीं है। लाइफ में कहीं भी डरो मत, बाकी तो फोड़ लेंगे, बाकी हो जाएगा, अंदर से बस गट्स होने चाहिए। आई फील जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ, मैं ये कोई बुकिश बात नहीं बोल रही हूँ, माई एक्सपीरियंस इज दैट अगर एक डोर क्लोज होगा ना तो दूसरे 10 doors खुलेंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ है आपकी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, कहीं पे भी जस्ट आपको आप में पेशेंस होनी चाहिए, एंड यू शुड हैव दैट होप, यू नो, दैट ओके आई वांट टू मूव ऑन। लाइफ में मत डरो, कहीं पे भी मत डरो, डरने जैसा कुछ है ही नहीं है। देयर इज नथिंग टू गेट स्कैर्ड ऑफ, नो पर्सनल इमोशंस, नो पर्सनल सेटबैक, उससे क्या डरना। ठीक है, चीज़ हो गई, मूव ऑन। ठीक है, कोई चीज़ आज आपके पास, अगर आप बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से डरते, आफ्टर कोरोना बहुत लोगों की फाइनेंशियल स्थिति भी खराब हो गई है, तो यार अभी मत डरो उससे, बहुत सारे मौके आएंगे जब आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को आगे इम्प्रूव कर पाओगे। बट अभी डर के रुक गए ना तो वो सारे मौके भी वहीं छूट गए। व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यू आर लूजिंग सो मच बाय गेटिंग स्कैर्ड, आई फील सो। सो दैट स्कैरीनेस ऑफ एनीथिंग इज, आई थिंक, किसी में नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हिम्मत रखो हर चीज में, पेशेंस रखो, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। एक चीज चली गई, 10 चीज आएंगी, ट्रस्ट मी, 10 न्यू थिंग्स विल कम इन योर लाइफ। ओके, वेरी नाइस टू टॉक टू यू। काफी मजा आया और थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली वी आर मैच। We matched the outfits, white. ओके, ग्रेट। Thank you so much, Dhruv.